नमस्कार मित्रों, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल राजकुमार सर इंग्लिश क्लासेस में। आज एक बार फिर प्रताप जी सर क्लास लेंगे। Morning, friends. धन्यवाद। Welcome all of you, Rajkumar classes. Yesterday and the previous day we have studied about the literature, particularly English literature and British literature, and we have reached till the topic of Renaissance. We have already studied on three topics: the Old English literature in Anglo-Saxon period, and we have studied about Anglo-Norman period and Chaucer period, and the last day we were in the mid of Renaissance period, which begins from 1400 and completes till 558. Here we discussed about one to one and another type of creations. The most of the creations which occur in Renaissance periods were like one poetry work which was Titals Miscellany. In the Renaissance period, Titals Miscellany was a poetic work. It was a poetic work which was written in the Renaissance period. Title is Titals Miscellany, and it was written by White and Surrey. White and Surrey were two poets, and by these both poets, this was written is the mixing of both of the poets. Titles Miscellany, and it is the first creation in poetic form which was made in the Renaissance period. And the particular thing about White and Surrey, if you talk about, then it is that White was the first person who brought sonnets into English literature. White was the first person who brought sonnet into English literature, and Surrey was the person who brought blank verse in English literature. And the blank verse and the sonnets has much contribution in the preparation of English literature for the poetic works. So we can say the Renaissance, in the Renaissance period by White and Surrey, it was the much a lot of and much contribution which was made in the preparation for the English literature. And this question which was firstly appeared in Renaissance period was Titals Miscellany, and White was the person who brought into English literature the sonnet, and it was the Surrey who made and initiations the blank verse in English literature or blank verse. A little part we think about the blank verse. Blank verse is a type of unrhymed poetic scale. This is not a unrhymed poetic scale. This is not a particular poetic scale. It is the most easy pattern, easy method in English literature in which you can create a poetry. And the little part of it we have already discussed about in the later period. So I think it will be the prefer for the poetic creations to discuss about the Renaissance period. And the next, as it has been discussed about, which was written by another work, that was Utopia. It was the another creation which was written by another author in Renaissance, and Utopia was written in English literature by Thomas More. Thomas More was the author who created Utopia in English literature, and the meaning of Utopia is a kingdom which is not found anywhere. The particular meaning of यूटोपिया इज द किंगडम विच इज नॉट फाउंड एनीवेयर, मतलब ऐसा साम्राज्य जो कहीं पाया नहीं जाता, मतलब पाया नहीं जाने का मतलब ऐसा है कि ऐसे मतलब साम्राज्य जो मतलब विच इज ओनली क्रिएट इन योर इमेजिनेशन पावर, हमारी कल्पना के अंदर जो है वो क्रिएट होता है। क्योंकि अपनी हिंदी जगत से अगर इसे जोड़कर देखें तो हिंदी में इसे जो है राम राज्य कहा जाता है, और राम राज्य जो होती है उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। मतलब
उसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होना। तो थॉमस मूरे जो है वो एक इस प्रकार का जो है पोइट रहा था जो है रेनेसां के अंदर जो है, जिसने जो है यूटोपिया नामक जो है एक क्रिएशन जो है क्रिएट की थी। और उसका मतलब होता है किंगडम विच इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर, एक ऐसा साम्राज्य जो कहीं जो है पाया नहीं जाता है। एंड इन एसेंस वी कैन से दैट हियर कंप्लीट्स and we have taken about the mostly creations which occur in Renaissance period. Some of the creations has already been discussed in the previous video. Now I complete the Renaissance here, and after that we discussed about the next period which is related to the next period, Elizabethan era. Okay friends, we have studied till the limit of Renaissance period. Now we are going to study about the next period of English literature, which is known as the age of Shakespeare. Now we are going to study about the age of Shakespeare. The age of Shakespeare is also, you can say in the other form, the Shakespearean age. The span of Shakespearean age is from 558 till 625. And the upper level, if you like to talk about the span of the period of the Shakespearean age, then we can say it almost begin from the year of 558 and it completes till the age of 625. But at the broad level, the age of Shakespeare can be divided into two span. शेक्सपियर की जो एज है वो अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें तो ये वैसे जो है दो पैमानों पर जो है डिवाइड की गई है. वन इज नोन एज द एलिजाबेथन एज. The Elizabethan is almostly at the broad level. It begins from 558 and it completes till the span of 603. And the next age, which if we talk about is the part of the Shakespearean age, then you can say the next is the Jacobean age. The Jacobean age almostly this begins from where the Shakespearean, the Elizabethan age completes. It generally initiates from 603 and it completes till the age of 625. This is known as the Jacobean age. And at the combination level, both of these ages are known in English literature as the age of Shakespeare or the Shakespearean age. Now, if we talk about what is the difference both of these is, then you can understand it is the age of Elizabethan age. If we talk about, here was the rule of Elizabeth फर्स्ट क्वीन इन इंग्लैंड एट दिस एज. अगर इस एज पर अगर बात करें दोनों में फ़र्क है तो वैसे तो शेक्सपियर का आज जो है वो तो बिल्कुल कॉमन है दोनों के लिए, बट थोड़ा सा जो है यहाँ रूल की जो है डिफरेंस है. केवल शासन की बात करें तो वो थोड़ा अलग अलग है. 1558 से लेकर के 1600 जो है 3 तक का जो काल है उस ज़माने के अंदर जो है वहाँ एलिजाबेथन फर्स्ट जो थी शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की क्वीन थी. बट एट द एज ऑफ इफ यू टॉक अबाउट द जैकोबियन एज, और अगर जैकोबियन एज की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है 1603 के आसपास आकर के जो है एलिजाबेथन जो है रानी जो थी उसका काल जो है शासनकाल यहाँ समाप्त हो गया था. बट एट द व्हेन कैम द ईयर ऑफ 603, जब जो है 1603 का जब काल आया, व्हेन देयर बिगेन द रूल ऑफ जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड. तो इस ज़माने में जो है जेम्स फर्स्ट जो था वो इंग्लैंड का किंग बना था, और या तुम इसे कह सकते हैं प्रॉक्टर जो है एक प्रकार से संरक्षक जो है उसका इसने जो है काम किया था. एट द कमांड लेवल बोथ ऑफ दीज एज आर नोन एज द शेक्सपियरियन एज. इन दोनों ही जो है ज़माने के अंदर जो है शेक्सपियरियन एज जो है वो कमांड रूप से जो है कहलाती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट, दिस इज ओनली ए लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनार्चिकल प्रोसेस इन लिटरेचर. ये तो थोड़ा सा वो एक एनार्चिकल प्रोसेस शासकीय व्यवस्थाएं जो है कि कौन राजा था क्या था. बट इन पर्टिकुलर इफ यू टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ द लिटरेचर, अगर लिटरेचर की बात करें देन वी शुड हैव टू गो इन द लिटरेरी फिगर ऑफ लिटरेचर. तो हमें जो है साहित्यिक जो है वहाँ फिगर जो है मतलब राइटर्स ऑथर्स हैं उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा. तो ये तो एक ऊपरी पैमाने पर जो हमने देखा है कि जो है ये एज जो है, अब जो है देखते हैं शेक्सपियरियन एज के बारे में कुछ विशेषताएं जो है क्या क्या है. शेक्सपियरियन एज जो है यू कैन से दैट द शेक्सपियरियन
age is known is the golden era of English literature. शेक्सपियरियन एज जो है उसको जो है अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो है ये गोल्डन एरा, ऐसे जो है हिंदी में जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, वैसे जो है स्वर्ण युग ये कहा जाता है। जैसे अपनी हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हम बात करें तो गुप्तकालीन जो है द गुप्तियन एज इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन लिटरेचर। और इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री का जो है स्वर्ण युग जो है जैसे गुप्तकाल को कहा जाता है, वैसे अगर ब्रिटेन के अगर साहित्य की अगर बात करें देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट द एलिजाबेथन एरा एंड द शेक्सपियरियन एज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो है गोल्डन एरा कहा जाता है। बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज क्योंकि इन दिस एज इंग्लैंड got its culminations is equal to apexis. Apexis, you can say the highest point, highest points in many sectors is in trade, is in commerce, is in knowledge, is in prosperity and in literature. इस पीरियड को जो है शेक्सपियरियन एज जो है उसी को जो है अंग्रेजी साहित्य के अंदर जो है इस एज को जो है इंग्लिश लिटरेचर की जो है गोल्डन एज कहा जाता है। इसे गोल्डन एज जो है दिस एज इज नॉन इन इंग्लैंड जो है बिकॉज इन दिस एज जो है इंग्लैंड गॉट इट्स कल्मिनेशंस। इंग्लैंड जो है अपनी कल्मिनेशंस तक पहुंच गया था। कल्मिनेशंस का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ जो है उसका जो अंतिम ऊपरी शिखर जो होता है, जहाँ तक किसी चीज़ को विकास करना होता है, वहाँ तक जो है इंग्लैंड वहाँ तक पहुँच चुका था। हर क्षेत्र में जो है इंग्लैंड गॉट्स इट्स डेवलपमेंट्स, हर क्षेत्र में जो है इंग्लैंड ने जो अपनी ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल की थी। एज इंग्लैंड वाज द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेड, कमर्स, इन इट्स लिटरेचर, इन इट्स नॉलेज, इन इट्स प्रॉस्पेरिटी। हर क्षेत्र में जो है महान जो है महानता के शिखर पर रहा था। सो दिस इज नोन एज द golden period and golden era in English literature. Now we discuss about how many writers comes in English literature. अब देखते हैं कि इस सेक्टर के अंदर जो है वो कौन कौन से जो इंग्लिश लिटरेचर के लेखक जो यहाँ आते हैं। Now we discuss about them. अब हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम राइटर्स की बात करें then if you talk about the writers of शेक्सपियरियन एज, अगर शेक्सपियरियन एज जो है 1558 से लेकर के हमने जो बात की है 1625 तक का जो काल है, उसके अगर राइटर्स की बात की जाए यहाँ तो डिफरेंट राइटर्स रहते हैं। अगर सबसे पहले इफ यू वांट टू टॉक अबाउट हु वर द पोइट्स इन दिस एज, इस सेक्टर में वो कौन कौन से व्यक्ति थे जो जिन्होंने पोइट्स का काम किया था। जैसे फिलिप सिडनी वाज वन ऑफ देम। फिलिप सिडनी जो है वो इनमें से एक था। एंड द अनदर पोइट हु आल्सो कम्स अंडर द शेक्सपियरियन एज इज नोन एज एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जो है वो खुद जो है विलियम शेक्सपियर की एज के अंदर जो है एक महान कवियों में से रहा था। एंड ऑन द अनदर sector, if we want to about who were the best dramatists who come under Shakespearean age, अगर हम जो है ड्रामाटिस्ट की अगर बात करें वो कौन कौन से नाटककार रहे थे जो शेक्सपियर की एज के अंदर जो है आते हैं, then one of them was Christopher Marlowe. क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो एक ऐसा ड्रामाटिस्ट था जो शेक्सपियर की एज के अंदर आता है। एंड after him there was the most prominent literary figure in English literature and everyone is acquainted to that personality. He was Shakespeare. और दूसरे अगर मान लीजिए prominent literary figure की अगर बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर जो है
वो भी जो है इसी सेक्टर के तहत जो है आता था। ये दोनों जो है रचनाकार जो है इसी ज़माने में रहे थे। नाटककारों के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो इस सेक्टर के अंदर आता है। विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें वो ड्रामाटिस्ट था। ये तो यूनिक पर्सनालिटी था, जो है पोइट भी रहा था, ड्रामाटिस्ट भी था जो है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एसिस्ट, और अगर हम एसिस्ट की अगर बात करें वो comes under this age, जो इस एज के तहत आते हैं। then we can understand the name of the father of English literature, the name of father of English assist जो है उनका नाम जो है हम याद करते हैं, वो इसी एज के अंदर आता है। आप सबने सुना होगा फ्रांसिस बेकन is an assist who comes under this age. These were the most prominent literary figure who comes under the age of Shakespearean. ये जो है वो मुख्य जो है वो लिटरेरी फिगर हैं जो शेक्सपियरियन एज के तहत आते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट वन बाय वन ईच ऑफ दीज कैरेक्टर्स। अब हम जो है इनमें से प्रत्येक जो है कैरेक्टर के बारे में जो है एक एक करके जो है बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो है वर्ड्स की अगर बात करें नाम, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला नाम जो आता है वो आता है फिलिप सिडनी का। फिलिप सिडनी जो है ही वॉज, इसके बारे में सबसे पहले ये कहा जाता है कि ही वॉज एन आर्डेंट लवर ऑफ जॉफ्री चौसर। फिलिप सिडनी जो था वो जॉफ्री चौसर का एक बहुत ही आर्डेंट लवर था। आर्डेंट इज इक्वल टू जबरदस्त था, जिसे आप कह सकते हो, गहन कह सकते हो, जो है बहुत ही ट्रेमेंडस जिसे कहा जाता है। एक बहुत जबरदस्त प्रकार का ये प्रेमी रहा था जो है जॉफ्री चौसर। कैसे जॉफ्री चौसर जो है उसकी रचनाओं को पढ़ना जो इसे बहुत बेहतर लगता था। जैसे कुछ रचनाएं इसकी नाम जो अगर हम देखें तो जैसे एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। Astrophel and Stella is the most creation which is created by Philip Sidney. Philip Sidney जो है वो Astrophel and जो Stella है वो इसके द्वारा रचित जो है सबसे बेहतर प्रकार की जो है रचनाओं के अंदर मानी जाती है। अगर हम बात करें द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, तो एस्ट्रो जो है और स्टेला जो है इन दोनों की अगर हम मीनिंग्स की बात करें देन यू कैन अंडरस्टैंड स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं वो इनका जो है अर्थ होता है। एस्ट्रो का भी अर्थ जो है यहाँ इसके अंदर जो स्टार से लिए गए हैं। एंड स्टेला जो है इज द मीनिंग आल्सो, द मीनिंग ऑफ स्टेला इज आल्सो टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्टार। इसको स्टार के रूप में किया गया है। बट इफ यू टॉक अबाउट द थीम ऑफ दिस क्रिएशन, और अगर इस क्रिएशन की अगर हम थीम की बात करें तो ये है कि द क्रिएशन is dedicated to Fennel of Devernax। ये रचना जो है वो जिसका नाम स्टेफेल एंड स्टेला है, दिस वाज डेडिकेटेड बाय फिलिप सिडनी टू ए पर्सनालिटी नेम्ड एज फेनेल ऑफ डेवरनैक्स। ये रचना जो है वो फिलिप सिडनी के द्वारा जो है एक पर्सनालिटी को जो है डेडिकेट की गई थी जिसका नाम था फेनेल ऑफ डेवरनैक्स। और फेनेल ऑफ डेवरनैक्स जो है वो वाज बिलोव्ड एंड वाइफ ऑफ सिडनी। ये फेनेल जो है डेवरनैक्स जो थी ये फिलिप सिडनी जो है उसकी प्रेमिका रही थी, और उसके बाद के अंदर जो है उसकी जो है प्रेमिका जो है और उसके बाद में पत्नी जो है उसके रूप में जिसका किरदार किया था, तो उसने अपनी पत्नी और जो है प्रेमिका को ही जो है ये उसने फेनेल ऑफ स्टेला, ये जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ये डेडिकेट किया गया है। और इन कैरेक्टर्स में अगर इफ यू टॉक अबाउट देन इन दिस क्रिएशन द फिलिप सिडनी प्रेजेंटेड एस्ट्रो हिमसेल्फ। उसने जो है इसके अंदर जो है अपने आप को जो है बात करें तो एस्ट्रो के रूप में उसने प्रेजेंट किया है। एंड इन द क्रिएशन द पोएट फिलिप सिडनी इज प्रेजेंटेड स्टेला एज डेवरनैक्स। जो है इसके अंदर जो है उसने स्टेला को, स्टेला वो वाज हिज बिलोव्ड, जो उसकी प्रेमिका थी जो है उसको जो है जिसका नाम फेलन ऑफ डेवरनैक्स था, उसको जो है फिलिप सिडनी ने स्टेला के रूप में जो है यहाँ प्रेजेंट किया है। और अपने आप को जो है उसने जो है एस्ट्रो के रूप में किया है। दाउ बोथ आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द साइन ऑफ स्टार। दोनों ही जो है वो स्टार के रूप में जो है यहाँ उन्होंने जो है व्यक्त किया था जो है।
The another creation in by the Philip Sidney, in spite of Astrophel and Stella, the creation is known in the form of Arcadia. Arcadia is the second creation which is made by the Philip Sidney, and Arcadia is a pastoral romance. आर्केडिया जो है उसे एक पेस्टोरल रोमांस के रूप में जो है दिखाया गया. पेस्टोरल रोमांस सच टाइप ऑफ रोमांस विच पेस्टोरल जो है वर्ड इसका मतलब होता है जनरली रिलेटेड टू सीफ इत्यादि जो होते हैं, भेड़ इत्यादि जो होते हैं उससे संबंधित होता है. यू कैन कंसिडर इट इज द बैकग्राउंड ऑफ farmer and रूरल लाइफ. एक फार्मर और जो रूरल लाइफ जो होती है उससे संबंधित जो बैकग्राउंड होता है वो पेस्टोरल से संबंधित होता है. तो आर्केडिया जो फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई दूसरी क्रिएशन है विच इज कंटेनिंग ए पेस्टोरल रोमांस इन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के अंदर जो है एक पेस्टोरल रोमांस से संबंधित ये जो क्रिएशन है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड पोएट ऑफ एलिजाबेथ हेरा. अभी हम जो एलिजाबेथ हेरा के जो है दूसरी कवि की जो है बात करते हैं. द next most prominent figure which comes under Shakespearean age as a poet is known as Edmund Spenser. अगर हम दूसरे अगर कवि की अगर बात करें तो वो इस एज के तहत जो आता है वो एक एडमंड स्पेंसर का जो है नाम आता है. एडमंड स्पेंसर जो है उसने जो है मुख्य रचनाएं जो लिखी है that contains the first creation is known as a fairy queen. पहली रचना जो है एडमंड स्पेंसर की जो है वो फेरी क्वीन के जो है नाम से जो है जानी जाती है. और दूसरी आई विल नॉट गो नाउ इन डिस्कशन इन द डीप ऑफ दीज क्वेश्चंस. अब मैं जो है इन क्वेश्चंस के जो है डीप में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली एट द लेवल ऑफ बैचलर. हम केवल बैचलर लेवल के हिसाब से जो है देख रहे हैं. इसलिए जो है सेकंड क्रिएशन दूसरी क्रिएशन जो है विच कंटेंस एमोरिटी. दूसरी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये अपने आप के अंदर जो है एमोरिटी है. एमोरिटी इज ए ग्रुप ऑफ सोनेट्स. एमोरिटी अपने आप के अंदर जो है ग्रुप ऑफ सोनेट्स है एंड ऑलमोस्ट दिस कंटेंस 89 सोनेट्स. इस ग्रुप के अंदर जो है हम बात करें तो ये 89 जो है वो सोनेट्स जो है यहाँ आते हैं. एंड देयर इज गिवन वन सोनेट इन एमडी यूनिवर्सिटी इन बी पार्ट फर्स्ट ईयर क्लास. और इसी सोनेट्स में से जो एक सोनेट जो है एडमंड स्पेंसर का जो है एमडी यूनिवर्सिटी में जो है बी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दे रखा है विच इज नोन एज आइस एंड फायर. आइस एंड फायर का एक जो सोनेट है वो यहीं से दे रखा है. तो एक सोनेट जो है वो दिया हुआ है. Amority, in the Amority group there is given one prominent sonnet which is known as the Ice and Fire. And now we a little discuss about Ice and Fire. थोड़ा सा हम Ice and Fire के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं. And in this sonnet, इस sonnet के अंदर जो है the poet shows a great regression which comes under his heart for his beloved. इसके अंदर जो है वो दिखाता है उसके हृदय के अंदर जो कुछ तीव्र वेदना इत्यादि जो है अपनी प्रेमिका के प्रति जो है आती है वो. And he compares the first line of the line is a direct comparison between the author and his feelings towards his beloved. पहली ही जो लाइन जो है वो कविता की जैसे आपने देखा होगा उसके अंदर लिखा हुआ है my love is like to ice, my love is like ice and I to fire. सोनेट की जो है फर्स्ट लाइन जो है वो दे रखी है. यही मतलब लाइन जो है वो एक बेहतर प्रकार की जो है कि कंपैरिजन जो है वो दिखा रही है द लाइन इसके बीच में कि माई लव इज इक्वल टू एडमंड स्पेंसर वांट टू से दैट माई लव इज यूज फॉर हिज बिलाउड. अपनी बिलाउड के लिए वो कहता है कि मेरी बिलाउड जो है लाइक आइस, लाइक आइस, वो आइस के समान है. आइस इज द आइस सेंसलेस.
आइस जैसे मान लीजिए सेंसलेस होती है, वो कहते हैं निठुर कठोर प्रकार की होती है, उसी प्रकार से मतलब हार्ड कंसेप्टेड है जो है। आई वांट टू शो माय डीप लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स माय बिलाउड, मैं अपनी बिलाउड प्रेमिका जो है, लवर है, उसके प्रति जो है गहन प्रेम जो है प्रदर्शित करना चाहता हूँ जो है। बट वह जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्ड है। एंड आई टू फायर, बट आई टू फायर, फायर इज इक्वल टू आई एम बर्निंग इन द स्पिरिट टुवर्ड्स हर लव, मैं उसके प्रेम के प्रति जो है बस रात दिन जो है जले जा रहा हूँ जो है, उससे मतलब हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव हर लव फॉर मी, मेरे लिए जो है उसका प्रेम हासिल करने के लिए बहुत से एफर्ट करता हूँ। बट शी इज सो सेंसलेस दैट सो हार्ड इज द आइस दैट शी डजंट गिव एनी रिप्लाई, कि वो इतनी ज़्यादा निठुर है, वो इतनी ज़्यादा जो है मतलब हार्ड है कि मेरे प्रेम का जो है कोई रिस्पॉन्ड, कोई प्रतिवेदन नहीं करती है। इफ यू टॉक अबाउट इज द लिटरेरी फिगर दिस कंटेंट्स इस लाइन, अगर हम जो है इस लाइन के जो है बारे में अगर मान लीजिए हम बात करें जो है इट्स ए लिटरेरी फिगर, देन यू कैन से द लाइन इज द एग्जांपल ऑफ सिमली। ये लाइन जो है वो एक सिमली का उदाहरण है। वैसे तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट पर्टिकुलरली इन द नेक्स्ट वीडियो, हम जो अगले दूसरे वीडियो के अंदर व्हेन वी गो ऑन द पर्टिकुलर एंड यूजुअल सिलेबस ऑफ द बैचलर पार्ट, जब हम बैचलर पार्ट के जो है यूजुअल सिलेबस के अंदर जाएंगे तब हम जो डिटेल से कविता का अध्ययन करेंगे। बट अभी यहाँ एज ए लिटरेरी हिस्ट्री थोड़ा सा हमने यहाँ इसके अंदर जो है देख लिया है। तो लाइन की अगर बात करें तो लाइन जो है इज इन डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ सिमली, ये लाइन जो है एक सिमली का उदाहरण है। सिमली के अगर बारे में बात करें वैसे तो वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, पर थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि सिमली जो वर्ड है विच हैज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिमलीस। अगर सिमली की बात करें तो सिमली जो होती है वो यूनान की भाषा का जो शब्द है सिमलीस, वहाँ से जो है ये शब्द जो है बना है। एंड द मीनिंग ऑफ सिमली इज लाइकनेस और कंपेरिजन। सिमली जो होती है अगर उसकी बात करें तो उसका मीनिंग जो होता है लाइकनेस, कंपैरिजन जो होती है, तुलना होती है। इन द सिमली देयर इज गिवन द कंपैरिजन एंड लाइकनेस बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ जो दो असमान वस्तुएं जो होती है, चीज़ें जो होती है, उनके बीच में जो है असमान फिगर जो होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन, एक तुलना जो की जाती है यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज, सो। लाइक जो है, एज, सो इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए अगर तुलना की जाती है, विच इज नॉन एज द सिमली, वही सिमली है। जैसे इन दिस लाइन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, इसी लाइन के अंदर एक जो है डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है तुलना है। जैसे यहाँ यूजिंग द वर्ड लाइक, लाइक का वर्ड के फर्स्ट इज माई लव, यहाँ लव, लव इज ए एनिमेट बीइंग, लव जो है वो एक एनिमेट बीइंग, एक सजीव है, बिलाउड के लिए यूज है। एंड द बिलाउड इज कम्पेयर टू आइस, आइस के लिए, आइस नॉन एनिमेट थिंग, आइस जो होती है एक नॉन एनिमेट निर्जीव चीज़ होती है। तो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर यहाँ कंपेरिजन किया गया तो लाइन इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमली। तो लाइन जो है वो एक बहुत ही बेहतर प्रकार का जो है एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एग्जाम्पल है बट कंप्रेस्ड सिमली, कंप्रेस सिमली, क्योंकि इसमें जो है आई लाइक इत्यादि रिड्यूस्ड कर दिया गया क्योंकि इस लाइन के अंदर जो है वो आ चुका है जो है। तो एक सोनेट जो है यहाँ हमने देखा, ये जो है आइस एंड फायर जो है एमओटी से जो है लिया गया एक सोनेट है, और फेरी क्वीन जो है वो भी इसी के तहत ही जो है आती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो है। The next creation for which we are going to study about the Spencer is now the third creation, which is mostly used known as Sapphire's calendar. Sapphire's calendar is also an example of pastoral romance. And this creation contains 12 eclogues. 12 eclogues, each eclogue, यहाँ का जो प्रत्येक eclogue जो है, description जो है, each eclogue contains each month of the year. प्रत्येक एक्लॉग की अगर बात की जाए तो यहाँ का प्रत्येक एक्लॉग जो है वो मंथ जो है एक ईयर का जो होता है उस एक्लॉग के बारे में जो है ये बात की गई है। तो इसी प्रकार से पेस्टल रोमांस की जो है ये डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ 1 by 1 करके जो है प्रत्येक महीने जो है मंथ ऑफ द ईयर जो है डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी जो है एक प्राकृतिक सुंदरता के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। दिस इज आल्सो द परमानेंट लिटरेरी क्रिएशन विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के द्वारा क्रिएट की गई जो है ये एक बेहतर प्रकार की जो है रचना है। अभी हम बात करते हैं अगले जो है लिटरेरी फिगर की जो है।
क्रिस्टोफर मार्लो जो है, क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसके बारे में हम वोकेबुलरी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन जो है नहीं दिया जाता यूनिवर्सिटीज़ में है, क्योंकि डायरेक्ट जो है शेक्सपियर का प्रभुत्व इतना ज़्यादा है इस एज के अंदर की मोस्टली ड्रामा इत्यादि जो है वो उसी के ही जो है वो दे रखे हैं। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो जो है ही इज़ नॉन एज, थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर बात की जाए if you talk about the Christopher Marlowe, if you talk about Christopher Marlowe, Christopher Marlowe is known as the presider of William Shakespeare। अगर क्रिस्टोफर मार्लो की अगर बात की जाए तो क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसे विलियम शेक्सपियर का जो है प्रेसिडेंट कहा जाता है, यानी इसे इसका जो है पूर्वगामी कहा जाता है। एंड ही इज़ द ओनली फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर वो, यही इंग्लिश लिटरेचर का वो एकमात्र जो है लिटरेरी फिगर है वो क्रिएट द राइट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। इंग्लिश लिटरेचर का जो है यही वो लिटरेरी जो है फिगर है जिसने जो है ड्रामा का राइट स्ट्रक्चर, एक कच्चा स्ट्रक्चर संरचना जो है वो तैयार कर दी थी। यद्यपि जो है इस राइट स्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला था वो विलियम शेक्सपियर था, लेकिन विलियम शेक्सपियर जो है ये समझ सकते हो कि उसके पहले जो इसने जो है विलियम शेक्सपियर जो है उसके लिए एक प्रकार से जो है स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया था इसके द्वारा जो है ड्रामा का। एंड यू कैन कंसिडर दैट शेक्सपियर वॉज the indebted for this figure। शेक्सपियर जो है वो इस फिगर के लिए, लिटरेरी फिगर के लिए प्रकार से समझ सकते हो इस बात, इसका जो है वो इंडेप्टेड रहा था, ऋणी कह सकते हो ये रहा था जो है, क्योंकि इसने जो है ऑलरेडी पहले से जो है ड्रामा जो है उसका एक स्ट्रक्चर जो है स्टेज तैयार करके रखा था और उसी स्टेज को यूज़ करके फिर शेक्सपियर जो है उसने जो है बहुत से बेहतर नाटकों का जो है निर्माण किया गया था जो है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द क्रिएशंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, और अगर हम जो है क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसके क्रिएशंस की अगर बात करें, हम अगर उसकी वर्क्स की बात करें तो द फर्स्ट वर्क विच इज़ नॉन फॉर क्रिस्टोफर मार्लो इज कैम्बरलैन। टेम्बरलेन जो है वो एक ऐसी रचना है, टेम्बरलेन जो है वो शेक्सपियर जो है उसके लिए जो है जानी जाती है, यद्यपि इसको तो इतना यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता है, बट द सेकंड क्रिएशन इज विच इज़ टू मच फेमस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा जो दूसरी जो एक रचना है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है विच इज़ नॉन एज डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक इस प्रकार की जो है लिटरेरी फिगर ड्रामा है, जो ड्रामा जो है क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसके लिए जाना जाता है, या क्रिस्टोफर मार्लो जो है इज नॉन फॉर डॉक्टर फॉस्टस, वो डॉक्टर फॉस्टर जो है उसके लिए जाना जाता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लिटरेरी जनरली शॉर्ट थीम ऑफ शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फॉस्टर्स, अगर हम क्रिस्टोफर मार्लो की जो है डॉक्टर फॉस्टर्स की जो है अगर सिनॉप्सिस की बात करें या यूँ कहें कि उसकी जो है थीम या उसके सारांश की बात करें तो यू कैन से कि यहाँ आप कह सकते हो कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो होता है ये यहाँ जो है ये स्क्वीर टाइप ऑफ इज ए स्क्वीर साइंटिस्ट। इस कहानी के अंदर जो है डॉक्टर फॉस्टर्स को एक स्क्वीर प्रकार की, स्क्वीर का मतलब सन की जो होता है, क्रेन की जो होता है, जिसे आप विचित्र कह सकते हो, दिमाग से जो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, इस प्रकार के जो है साइंटिस्ट के रूप में इसे दिखाया गया है। एंड वो जो है लॉन्ग्स वो लॉन्ग्स रखता है, लॉन्ग्स फॉर इज इक्वल टू डिजायर, याचना रखता है, वो एक मांग रखता है अपने आप से, इस प्रकार की चाहत रखता है। फॉर किस बात की जो है लॉन्ग्स फॉर रखता है, इन्फिनिट नॉलेज की, वो एक इन्फिनिट नॉलेज जो है उसकी वो याचना रखता है। वो मतलब है वो इस प्रकार का एक साइंटिस्ट है जो एक याचना रखता है कि उसे दुनिया का सारा ज्ञान जो है उसे हासिल हो जाएगी, इन्फिनिट लिमिटलेस नॉलेज यू कैन से दैट। वो इस प्रकार की जो याचना रखता है कि मतलब उसे दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा उसे हासिल हो जाए। बट
in the desire of this type of knowledge, he at the end of the drama totally converts into a evil thing. अंततः वो क्या होता है कि इस प्रकार के इन्फिनिट नॉलेज की जो है याचना में जो एक इविल थिंग के अंदर यूँ समझ लीजिए जो है एक दुष्परिणाम के रूप में जो है वो तब्दील हो जाता है, और वो क्या करता है कि वह जो है सेल्स हिज सोल टू ए सैटन, और एक सैटन जो होता है शैतान, उस शैतान को वो क्या करता है अपनी आत्मा तक जो है वो बेच देता है। और इस प्रकार से जो है डॉक्टर फॉस्टस इन द एंड जो है आप कह सकते हो कि ट्रेजिक एंड में कन्वर्ट हो जाती है, एक ट्रेजिक एंड में जो उसमें कन्वर्ट होती है, एंड दिस इज ए ट्रेजिडी, और इसी कारण से जो है ये ट्रेजिडी के रूप में जो है जानी जाती है। दीज आर द बोथ क्रिएशंस हु आर मोस्टली नोन फॉर क्रिस्टोफर मार्लो। ये वो दो रचनाएं हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो जो है उसके लिए जो है जानी जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू द मोस्ट लिटरेरी फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। अब हम जो है इंग्लिश लिटरेचर जो है उसके सबसे बेहतरीन प्रकार के जो है लिटरेरी फिगर की तरफ चलते हैं। मतलब यूँ कह सकते हो कि यू कैन से दैट दिस क्रिएशन वाज सच टाइप ऑफ लिटरेरी फिगर हु वाज ए गॉड गिफ्ट इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो है अपने आप में एक गॉड गिफ्ट था, जो है भगवान की प्रदत्त एक देन थी। जो मतलब ही डिडंट गो टू एनी यूनिवर्सिटीज़, ही डिडंट गो टू एनी वेरी मच हाई टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो ना तो है एज वर गॉन बाय द यूनिवर्सिटी बीट्स, जैसे कि यूनिवर्सिटी बीट्स जो गए थे, यूनिवर्सिटी बीट्स में जो लंदन की यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ कर के आए थे, कैम्ब्रिज से जो पढ़ कर के आए थे, इस प्रकार के विद्वान जो रहे थे वो यूनिवर्सिटी बीट्स में आते हैं। बट ये ऐसा लिटरेरी फिगर है जो मतलब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, एक गांव के छोटे से स्कूल में थोड़ा सा गया था जो, लेकिन इतना गॉड गिफ्ट इसके अंदर जो है भगवान ने जो है क्रिएट किया था कि उसके बिना अगर हम बात करें तो अंग्रेजी साहित्य अधूरा है। एंड यू ऑल हैव लिसन्ड अबाउट द नेम ऑफ दैट लिटरेरी फिगर। आप सबने जो उस लिटरेरी फिगर की जो है बारे में बात की है, एंड ही इज़ द शेक्सपियर, जिसके बारे में नाम सुना जाता है वो है जी शेक्सपियर। नाउ वी डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द शेक्सपियर। शेक्सपियर को थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं जी, क्योंकि उसके बिना जो है सच कहें तो बहुत सी क्लासें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ तक कई यूनिवर्सिटीज़ की तो फाइनल क्लासेस में भी जो है शेक्सपियर के ड्रामा दिए हुए, पर मोस्टली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ही है जो है